स्टूडेंट्स वी आर सॉल्विंग नाउ अक्टूबर 2005. इसका एडजस्टमेंट 1 इंपॉर्टेंट है, बाकी एडजस्टमेंट्स 1 and 2. 1 and 2. Sampada Limited is a company. October 2005. Sampada Limited is a company registered with an authorized capital of rupees 25 lakh divided into equity shares of 100 each. 50% of shares are issued on which 80 per share is called up. Following balances are extracted from its ledger as on 31st December. Land, fixed asset; building, fixed asset; machinery, fixed asset; furniture, fixed asset; stock, inventories; debtors, trade receivable; cash in hand, cash and cash equivalent; current account with bank, cash and cash equivalent; interim dividend paid, ये reserves में जाएगा, P&L से minus होगा under reserves. Advance income tax will adjust against provision for tax और decide करेंगे. Prepayments, short term loans and advances. Prepayment का मतलब prepaid expense. Share capital, security premium, reserves and surplus, debenture redemption fund, reserves and surplus, capital reserve, reserves and surplus, general reserve, reserves and surplus, profit and loss, reserves and surplus. तो reserves काफी सारे हैं, ध्यान रखना. 12% debentures, long term borrowings, bank loan. Now they have just said unsecured students, तो long term borrowings भी हो सकता है, short term भी. We'll consider it as long term borrowings. ठीक है. Creditors, trade payable, provision for tax will adjust against advance tax. Adjustment number 1. ये पूरा adjustment 1 ना share capital से related है students. Make the shares fully paid up out of general reserve. हम effects सब बाद में discuss करेंगे. Make the shares fully paid up out of general reserve. So put a mark on share capital and put a mark on general reserve. Shares से related है और general reserve. Make the shares fully paid up out of general reserve. Issue 2,500 equity shares. So again put a mark on share capital. To the public for cash. For cash मतलब बैंक अकाउंट पे मार्क कर दो. For बैंक अकाउंट पे दिया था स्टूडेंट, हाँ करंट अकाउंट विद बैंक. ओके. Issue bonus shares स्टूडेंट्स. Out देखो issue bonus shares in the ratio of 1 fully paid shares for 5 shares held out of general reserve. Bonus shares मतलब share capital and out of general reserve. So put a mark on general reserve. तो स्टूडेंट्स 3 डॉट शेयर कैपिटल पे होगा, एडजस्टमेंट ए बी एंड सी. 2 डॉट जनरल रिजर्व पे हुआ बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट ए, एडजस्टमेंट सी, एंड देयर इज 1 सिंगल डॉट ऑन बैंक अकाउंट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट बी. वो इफेक्ट्स हम बाद में देखते हैं, प्लस माइनस क्या करना है बाद में. अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अबव आर येट टू बी मेड, मतलब अभी तक कोई इफेक्ट्स नहीं दिया है तो अभी हमको इफेक्ट्स देना पड़ेगा. दैट इज अ सिंपल मीनिंग. एडजस्टमेंट 2. एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक, अगेन पुट ए मार्क ऑन बैंक स्टूडेंट. As per the instruction given to bank, rupees 1 lakh is to be transferred from current account to account of Sumedha Limited as a consideration for 10,000 equity shares of 10 each. Market value of investment is rupees 1 lakh 5. One of the customer मतलब debtor, put a mark on debtor. One of the customer directly paid 30,000 to one of supplier. Supplier मतलब creditor. So एक debtor पे mark करो, एक creditor पे mark करो. One of the customer directly paid 30,000 to one of the supplier creditor. Since intimation was not received in time, effect is yet to be given. तो अभी तक effect नहीं दिया है तो हमको देना पड़ेगा. Directors propose transfer rupees 10,000 to debenture redemption fund. तो debenture redemption fund पे transfer dot कर दो. Declare dividend. ये declare dividend तो हम लोग खाली note लिखते हैं students. One of the company who was injured while working in the company has filed a suit for damages for rupees 3 lakh. स्टूडेंट्स कोर्ट केस है डैमेजेस के लिए. सूट मतलब कोर्ट केस ना, और कोर्ट केस क्या होता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी. मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड. तो नंबर 5 इज नथिंग बट कंटिंजेंट लायबिलिटी. कंपनी हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन एज इट हैज बीन एडवाइज्ड दैट सूट इज लाइकली टू बी डिसाइड इन फेवर ऑफ कंपनी. उनका लॉयर है, लीगल एडवाइजर है, जो भी है ना, उसने कंपनी को ऐसा कहा है कि डरो मत, जो भी डिसीजन होगा, कोर्ट का जजमेंट हमारे फेवर में आएगा. वो राइट नाउ तो मगर अभी कंफर्म नहीं है ना स्टूडेंट्स, फेवर में आएगा कि नहीं. ओके, सो राइट नाउ इट इज नॉट कंफर्म, इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. स्टूडेंट्स पहले भी मैंने कहा था अप्रोप्रिएशन नाम का भी कोई चीज नहीं होती है. ओके, वो ओल्ड सिलेबस में था या कंपनीज एक्ट 1950 वो सॉरी ओल्ड कंपनीज एक्ट में था. दिस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 में अप्रोप्रिएशन नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना. सो स्टार्ट करते हैं. पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कौन कौन सा नोट हमको बनाना है. शेयर कैपिटल डेफिनेटली यस, और रिजर्व्स काफी सारे हैं यहाँ पे, उसमें एडजस्टमेंट्स भी हैं. शेयर कैपिटल नंबर 1, रिजर्व्स 2. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, हाँ स्टूडेंट्स, वो लोन फ्रॉम बैंक वगैरह थी. लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है, देयर इज नो शॉर्ट टर्म बोरिंग.
नेक्स्ट क्या था, कोई ट्रेड पेएबल क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स था ना स्टूडेंट्स, नंबर 4 हो जाएगा वो। अदर करंट लाइबिलिटी था कुछ, आई डोंट थिंक सो स्टूडेंट्स, कोई अदर करंट लाइबिलिटी मुझे तो नहीं दिखा, देयर वाज नो अदर करंट लाइबिलिटी। एक बार खाली ट्रायल बैलेंस चेक कर लेना, आई डोंट थिंक सो, नहीं है जाने दो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, यस, वो प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स 5। कोई फिक्स्ड एसेट था, बिल्डिंग लैंड, यस स्टूडेंट्स, दैट विल बी नंबर 6। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यस, वो एडजस्टमेंट में है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है। अदर नॉन करंट एसेट, नो, देयर इज नो अदर नॉन करंट एसेट। नेक्स्ट इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्रीज है, दैट विल बी 8। ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेटर्स 9। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यस 10। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यस 11। सो इन ऑल 11 नोट्स हमको बनाने हैं स्टूडेंट, इन ऑल 11। There is no authorized capital given. चलो ठीक है, ऑप्शन इशूड सब्सक्राइब पेड अप हमको दिया है शेयर कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल भी दिया है स्टूडेंट्स, मैंने लाइन नहीं छोड़ा, वो बिगिनिंग में दिया था, सॉरी। चलो कोई बात नहीं। सो 1 हो गया, 2, सो यहाँ पे शेयर कैपिटल आ जाएगा नंबर 2। ऑथराइज कैपिटल इज गिवन, इट वाज गिवन अबाउट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट में नहीं था, इट वाज गिवन अबाउट ट्रायल बैलेंस। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में काफी सारे एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स। देखो कितने रिजर्व्स थे, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L, 5 तो रिजर्व हो गए। देन उसके एडजस्टमेंट्स भी हैं, 1, 8, 10, कम से कम 12-15 लाइन्स हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 3 इज व्हाट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था, ये एडजस्ट हो जाएगा इधर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 ही था। नंबर 4 इज ट्रेड पेएबल्स, फाइव यहाँ पे बना रहा हूँ। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, नंबर 6 है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 3 लाइन में हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट, कितना फिक्स एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, 4 तो 5 लाइन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 7। 7 is non-current investment. This is not given in trial balance. ये adjustment में दिया है. We'll discuss that. Non-current investment. Sorry students. Non-current investment. Eight is inventories. तो एक ही लाइन में हो जाएगा। 9 क्या था, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या था, डेटर्स था, जस्ट डेटर्स था ना, बट उसमें एक एडजस्टमेंट है। 1, 2, 3, 10। 10 इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें एडजस्टमेंट भी है स्टूडेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एडजस्टमेंट भी है। सो 4-5 लाइन्स तो रखते हैं। कैश एट बैंक, तो शेयर्स इशू किया है उसमें कैश में, और इसमें इसका 1, 2, 3, 5 लाइन्स तो रखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सो ये नंबर 11। नंबर 11 क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म loans and
एडवांसेस। ओके, स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से स्टूडेंट्स। यहाँ रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, रिजर्व्स हैं। ओके, फर्स्ट डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फिक्स्ड एसेट लैंड, अमाउंट कितना दिया है 3 लाख, देयर इज नो एडजस्टमेंट फॉर दैट, सो डायरेक्टली आउटर कॉलम। बट स्टूडेंट्स बिल्डिंग देखो पहले भी मैंने किया था और आपको बताया था, दे हैव गिवन इज कॉस्ट ना, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है 15 लाख, 15 लाख, एंड WDV कितना दिया है 10 लाख, सो दैट मीन डेप्रिसिएशन शुड बी 5 लाख। ओके, सो कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, WDV। लैंड का डायरेक्ट, अच्छा रेट, ये बार बार मिस्टेक हो जाती है, लैंड के अगेंस्ट में लिखना चाहिए। लैंड 3 लाख मैंने गलती से फिक्स एसेट के सामने लिखा। ओके, लैंड का देव सेड नथिंग, तो कॉस्ट और फाइनल आंसर विल बी सेम। और वैसे भी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता। मशीनरी, पहले भी ट्वाइस बिफोर आई हैव डन दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स। मशीनरी कॉस्ट 20 लाख, and amount column how much they have given 14 lakh 60, 1460, so students 1460, so this should be 540 depreciation. Furniture, $175,000, outer column में 130, so this should be 175 and this, so 45,000. Okay, stock inventories, डेटर्स 10 लाख 18,700, डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट था ना, यस, तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। डेटर्स 10 लाख 18,750, कैश इन हैंड, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, how much cash in hand there is 2,500. next is current account with bank, मतलब कैश एट बैंक। इनर कॉलम में इसका एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, कैश एट बैंक how much it is given 2,25,000, 225,000। इंटरिम डिविडेंड पेड, ये P&L से माइनस होगा अंडर रिजर्व्स, बाद में लिखते हैं। एडवांस इनकम टैक्स, ये अभी लिख लेते हैं। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट साइड पे है, लास्ट आइटम। प्रोविजन फॉर टैक्स बड़ा अमाउंट है, बिगर है, सो प्रोविजन फॉर टैक्स पहले लिखेंगे। हाउ मच इज गिवन 2,45,000, 245। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एडवांस टैक्स कितना है 190,550, 550, सो नेट आंसर आउटर कॉलम 2,45,000 minus 245 minus 190,550 comes to 54,450. ओके, एडवांस टैक्स के बाद प्री पेमेंट मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, सो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्री पेमेंट्स, हाउ मच इज गिवन 15,15, आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। शेयर कैपिटल, स्टूडेंट देखो शेयर कैपिटल का एडजस्टमेंट है, इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाओ, आपकी नोटबुक में बनाओ। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई विल सॉल्व इट हियर। ओके, आई एम सॉल्विंग हियर। शेयर कैपिटल कितना दिया आपको 10 लाख स्टूडेंट्स, शेयर कैपिटल 10 लाख। ओके, आई एम रिकॉर्डिंग हियर बिलो बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट है, आप पेन से लिखना, बट आपकी नोटबुक में लिखो। आई डोंट वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज, इसके लिए मैं ये बैलेंस शीट के नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। या आपने बैलेंस शीट का प्रिंट आउट लेके रख रहा है, उसके नीचे वर्किंग नोट बना लो, ठीक है, बट यू हैव टू रिकॉर्ड विद पेन स्टूडेंट्स। बट आई एम नॉट रिकॉर्डिंग हियर, अभी मैंने इशूड सब्सक्राइब में नहीं लिखा, रीजन है उसका, बिकॉज देयर आर मेनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, बट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी है, तो उसके लिए एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम, how much securities premium is given to us? 1,25,000, आउटर कॉलम, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ये इनर कॉलम में लिखना, इसका एडजस्टमेंट है
debenture redemption fund. How much it is giving? 1 lakh. इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट. कैपिटल रिजर्व, इट्स अ नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. फर्स्ट लाइन में अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस. कैपिटल रिजर्व. How much we have recorded? 3. How much we record? 3 lakh. No adjustments. So outer column 3 lakh. Next is general reserve. So leave a line for debenture redemption fund. General reserve. General reserve में भी adjustments हैं students. हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा था कुछ 3 adjustments. 2 के 3 adjustments. General reserve. Okay. General reserve कितना उन्होंने कहा है? 8,50,850 इनर कॉलम बिकॉज देर आर एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. वो एडजस्टमेंट्स अब बाद में सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस. सो लीव 2 लाइन्स. फिर हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है इनर कॉलम में 193,400. 193,400. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. How much is given? 5,50,550. 12% secured debenture long-term borrowings. 12% secured debentures. No adjustments. Outer column 5 lakh. Bank loan unsecured. ये unsecured and this was secured. बैंक लोन अनसिक्योर्ड अगेन 5 लाख. ओके. नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल. इनर कॉलम में लिखना उसका एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. क्रेडिटर्स 858,400. 858,400. प्रोविजन फॉर टैक्स ऑन देखो मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया एडवांस टैक्स. नाउ वी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. इसके एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 and 2 स्पेशली नंबर 1 and 2 स्टूडेंट्स. मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप आउट ऑफ जनरल रिजर्व. देखो ये जो आपको शेयर कैपिटल दिया ना, रेफर द फर्स्ट लाइन. हाँ पहले मैं ऑथराइज लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, देन विल स्टार्ट. पहले ऑथराइज कैपिटल. रेफर द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. संपदा लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 25 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. 25 लाख को डिवाइड बाय 100 करो. ये ऑथराइज कैपिटल होगा उसका. दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स 25,000. सो हियर विल राइट 25,000 equity shares of rupees 100 each. Amount column 25 lakh and double underline. ठीक है. नेक्स्ट उसी लाइन में देखो वापस 50% ऑफ द शेयर्स आर इश्यूड. अच्छा अभी यहाँ आ जाओ सुनो. ये शेयर कैपिटल देखो मुझे ट्रायल बैलेंस में इधर 10 लाख. मैं इसको रब कर रहा हूँ 10 लाख ही लिखूंगा. नो नीड टू वरी. अभी देखो शेयर कैपिटल क्या है? ऑथराइज कैपिटल कितना कहा उन्होंने स्टूडेंट्स? 25 लाख. और नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है तो डिवाइड बाय 100 करो तो 25,000. 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स वाज ऑथराइज. 50% ऑफ द शेयर्स वर इश्यू. तो 50% करेंगे तो 12,500. तो शेयर कैपिटल में 12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100. ओके. सो 12,500 इंटू 100 करेंगे तो इट कम्स टू 12,50,000. शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए 12,50,000. बट ट्रायल बैलेंस में हमको कितना दिया दो आप लिखो मत अभी स्टूडेंट्स. पहले पूरा एडजस्टमेंट समझ लो. दिस इज इंपॉर्टेंट. बाकी तो एडजस्टमेंट अभी सिंपल. ओके. सो इट शुड बी 12,50,000. बट शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में फर्स्ट आइटम देखो 10 लाख है. क्यों 10 लाख है? अगेन रेफर द सेकेंड लाइन फ्रॉम द टॉप. ट्रायल बैलेंस के ऊपर 50% of the shares were issued on which 80 per share is called up. ठीक है फेस वैल्यू 100 है बट अब तक कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है स्टूडेंट्स? तो ₹100 कॉमा ₹80 कॉल्ड अप. तो अब 12,500 को 12,500 नंबर ऑफ शेयर्स 80 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 10 लाख होता है. इसके लिए ट्रायल बैलेंस में 10 लाख दिया है. तो कंफ्यूज मत होना. फर्स्ट डे से ऑथराइज कैपिटल इज 25 लाख. तो हमने 25 लाख को डिवाइड बाय 100 किया तो वी गॉट द नंबर ऑफ शेयर्स. इसका 50% शेयर्स आर इश्यूड. तो 50% शेयर्स मींस 12,500. इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इट कम्स टू 12,50,000. सॉरी बट ट्रायल बैलेंस में तो 10 लाख दिया है. क्यों 10 लाख दिया है? ठीक है फेस वैल्यू 100 है बट अभी तक कॉल्ड अप कितना है? 80. सो 12,500 इंटू 80 विल बी 10 लाख. आगे सोन में. सो एक्चुअली मस्ट राइट हियर इश्यूड सब्सक्राइब में
12,500 equity shares of rupees 100, rupees 80 called up and 10 lakh when there is no adjustment. बट यहाँ पे एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने इसको सेपरेटली लिखा वर्किंग नोट में. अब क्या बोल रहा है, ये शेयर्स पार्टली पेड अप है ना स्टूडेंट्स, 20 रुपया कम है ना, तो ये 20 रुपया कहाँ से आएगा, से दे हैव सेड, हमको कोई एजम्पशन नहीं करना है. मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप आउट ऑफ जनरल रिजर्व. स्टूडेंट्स शेयर फुल्ली पेड अप कर रहे हो तो शेयर का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा. 100 है और 100 फेस वैल्यू है, 80 कॉल्ड अप है, तो क्या बोल रहा है, शेयर्स को फुल्ली पेड अप करो. फुल्ली पेड अप कैसे होता है, मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल से. दे हैव नॉट आस्क्ड जनरल एंट्री, तो एंट्री रिकॉर्ड भी मत करो, इसको प्लस माइनस से समझो, वो अच्छा रहेगा, इजी रहेगा. ओके 100 का शेयर 80 कॉल्ड अप, सो 20 रुपीज बैलेंस है. दे आर सेइंग के मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप. तो शेयर्स फुल्ली पेड अप कैसे होता है, मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल से. तो जब आप मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल करोगे स्टूडेंट्स, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा ना. सो प्लस कॉल्स मेड, कितना कॉल्स करोगे आप, 12,500 मल्टीप्लाई बाई 20, जो 20 रुपीज का डिफरेंस है. नंबर ऑफ शेयर्स 12,500 है, मल्टीप्लाई बाई 20, सो इट कम्स टू 2,50,000. यहां तक समझ में आ गया. बट स्टूडेंट जब कॉल्स करोगे ना, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप आउट ऑफ जनरल रिजर्व. मैं आपको देखो एंट्री भी लिख के समझा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं स्टूडेंट्स. ओके ये प्रॉफिट एंड लॉस ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये मैंने अपने लिए प्रिंट निकाल के रखा है. व्हेन यू पास द एंट्री फॉर मेक अ कॉल, जनरल एंट्री इज व्हाट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. आपको मैं एंट्री लिख के समझा रहा हूँ. 12,500 इंटू 20 अभी मैंने किया, 12,500 इंटू 20 कितना आया, 2 लाख. दिस इज द एंट्री फॉर मेक अ कॉल. मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप का मतलब ही होता है मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल, ये तो बेसिक है. फिर आप रिसीव अ कॉल का एंट्री क्या पास करते हो स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट. तो अगेन वो 250 लिखोगे. बट वेट, वो क्या बोल रहा है, दिस शेयर शुड बी मेड फुल्ली पेड अप आउट ऑफ वेयर, जनरल रिजर्व. मतलब बैंक को डेबिट करने नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं बैंक को क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट में डाल देता हूँ. बैंक को डेबिट नहीं करना, या उसको मैंने ऐसे कैंसिल कर दिया. बैंक डेबिट मत करो, दे आर सेइंग डेबिट जनरल रिजर्व, सो जनरल रिजर्व डेबिट होगा. आगे समझ में. ओके स्टूडेंट्स, तो मेक अ कॉल के एंट्री की वजह से आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया. वो पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में नहीं. अगर बैंक में आता पैसा तो हम लोग कैश एट बैंक में ऐड करते, रिसीव अ कॉल होता तो. बट दे क्लियरली सेड कि इट शुड बी मेड फुल्ली पेड अप आउट ऑफ जनरल रिजर्व. मतलब बैंक में वो पैसा नहीं आएगा, आपको अपना रिजर्व यूज करना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. इसके लिए बैंक लिख के मैंने ब्रैकेट में डाला और उसको कैंसिल कर दिया. मतलब बैंक डेबिट मत करना, जनरल रिजर्व डेबिट करना. रिजर्व्स डेबिट करना मतलब रिजर्व्स को यूटिलाइज करना है ना स्टूडेंट्स. रिजर्व इज अ सेविंग्स ना, सेविंग्स में क्रेडिट होता है, क्योंकि रिजर्व्स क्या होता है, लाइबिलिटी. लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, तो उसको क्रेडिट करना चाहिए. बट यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट, मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स. तो यूज कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे जनरल रिजर्व में इसका इफेक्ट आएगा, माइनस यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स. कितना हमने यूटिलाइज किया, 2,50,000. सो एक इफेक्ट कहाँ गया स्टूडेंट, शेयर कैपिटल में, यहाँ पे ऐड किया. एंड सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया, जनरल रिजर्व में. दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1A. 1B पढ़ो अभी. इश्यू 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक फॉर कैश. जब कैश में आप शेयर्स इश्यू करते हो तो जनरल एंट्री क्या है, मतलब फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स है वो. बैंक अकाउंट डेबिट, एग्जाम में वो जनरल एंट्री नहीं पूछता, ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. 2,500 शेयर्स आपने इश्यू किया ऑफ 100 ईच, सो 2,500 इंटू 100 करो, 2,50,000. ये एडजस्टमेंट 1A था, दिस इज एडजस्टमेंट 1B. सो बैंक डेबिट, सो बैंक डेबिट मतलब बैंक में जाओ, ये रहा कैश एट बैंक, यहाँ पे ऐड लिखो. प्लस फ्रेश इश्यू किया आपने स्टूडेंट्स, कॉल नहीं किया है, देखो वहां पे लिखा भी है ना, इश्यू शेयर्स. तो फ्रेश इश्यू किया आपने, कितना किया, 2,50,000. सो हियर यू विल ऐड. और शेयर इश्यू करने से क्या होता है, ऑब्वियसली आपका कैपिटल बढ़ता है, तो गो टू कैपिटल, शेयर कैपिटल. यहाँ पे मैंने इसका वर्किंग बनाया है, तो यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल में लिखूंगा प्लस फ्रेश इश्यू. दिस वॉज एडजस्टमेंट नंबर 1B. ये भी 2 लाख. कोइंसिडेंस है कि सारे आंसर 2,50,000 2,50,000, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, हम तो एडजस्टमेंट फॉलो कर रहे हैं, वी आर मेकिंग अवर कैलकुलेशन. ये भी समझ में आ गया. दिस इज स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट 1A, दिस इज 1B. यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज 1B, दिस इज 1A, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो अच्छा रहेगा आपके रिविजन के टाइम भी आप देख सकते हैं.
ठीक है। सो 1A का एक इफेक्ट इधर है, एक इधर है, 1B का एक इफेक्ट इधर है, एक इफेक्ट इधर है। ओके, नाउ पढ़ो 1C, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड अगेन आउट ऑफ जनरल रिजर्व। स्टूडेंट्स, बोनस का पहले कैलकुलेशन होता है, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में किया है, हेल्ड एंड बोनस। इश्यू ऑफ हाउ मेनी शेयर्स, 1 बोनस शेयर फॉर हाउ मेनी शेयर्स हेल्ड, 5:1। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके, 12,500। अभी तो मैंने बताया था ये 12,500, सॉरी यहाँ पे देखो ना 12,500 शेयर्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये आपको ये आंसर आ जाएगा 12,500 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, इट कम्स टू 2,500। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर का कितना है, 100। ये नंबर ऑफ शेयर्स है, फिर हम लोग फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट द बोनस अमाउंट। ठीक है, अगेन बोनस की 2 एंट्री होती हैं, ये हमने बायबैक में भी किया था। दे आर सेइंग कि पहले बोनस डिक्लेयर होता है स्टूडेंट्स, तो डिक्लेयर कहां से होता है, रिजर्व से। मैंने सिखाया था ऐसा कि फर्स्ट यूटिलाइज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सेकंड यूटिलाइज कैपिटल रिजर्व, थर्ड यूटिलाइज सिक्योरिटीज प्रीमियम, देन एनी फ्री रिजर्व। हमने ऐसा सीखा है बायबैक में। बट ये एडजस्टमेंट क्या कहता है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। वो खुद बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, सो वी आर बाउंडेड बाय एडजस्टमेंट। सो अगेन ये 2,50,000 है, सो जनरल रिजर्व 2,50,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेकेंड एंट्री क्या होती है इसकी, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैं पेंसिल से क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट, बिकॉज आई वांट टू यूटिलाइज दिस पेज फॉर द अदर क्वेश्चंस। आप पेन से लिखो वर्किंग नोट्स में, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एग्जाम में एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो आपको पता चले कि इफेक्ट्स कहाँ से आ रहा है। नहीं तो मैं डायरेक्टली बोल दूं यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे माइनस करो। आपको थोड़ा बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना, रीजंस भी तो पता होना चाहिए वाई वी आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। ओके, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, जनरल रिजर्व डेबिट, अगेन रिजर्व डेबिट करना मतलब उसको यूटिलाइज करना, क्योंकि रिजर्व क्या होता है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने उसको डेबिट किया मतलब लाइबिलिटी को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो वहां पे माइनस होगा। तो ये राइट माइनस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस। वो भी कोइंसिडेंस है कि वो भी आंसर 2,50,000। ठीक है, तो जनरल रिजर्व हमने डेबिट किया, तो ये देखो जनरल रिजर्व हो गया। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर क्रेडिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट 0, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी 2,50,000, मैंने अमाउंट लिखना भूल गया। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,50,000, सो 2,50,000 क्रेडिट, 2,50,000 डेबिट 0। क्या बचा, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को क्रेडिट किया मतलब लाइबिलिटी में ऐड होगा। तो ईयर एडजस्टमेंट नंबर 1C प्लस इश्यू ऑफ बोनस या बोनस इश्यू। कितना इश्यू हुआ, 2,50,000 स्टूडेंट्स। सो दिस इज एडजस्टमेंट 1C, यहां भी मैं लिख देता हूं 1C। सो देखो इफेक्ट्स देखो, एडजस्टमेंट A 1A यहां पे आया, कॉल्स में जनरल रिजर्व में गया। 1B शेयर कैपिटल में आया, कैश बैंक में गया। 1C शेयर कैपिटल में आया, जनरल रिजर्व में गया। सो दीज आर द इफेक्ट्स फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1A 1B 1C। एक बार क्विकली मैं वापस से बता देता हूँ। ऑथराइज कैपिटल दे हैव सेट 25 लाख, इसको डिवाइड बाय 100 करो तो 25,000 होता है। दे हैव सेट 50% शेयर्स आर इश्यू, तो 50% मतलब 12,500। सो 12,500 फेस वैल्यू 100 है तो 12,50,000 होना चाहिए, बट ट्रायल बैलेंस में 10 लाख दिया है। क्यों 10 लाख दिया है, क्योंकि वहां पे लिखा है सेकेंड लाइन अबाउ द ट्रायल बैलेंस के 80 पेड अप है। सो 12,500 इंटू 80 करो, देखो 10 लाख आएगा। सो दैट्स व्हाट आई रिकॉर्डेड। ठीक है, फेस वैल्यू 100 है, अभी तक 80 कॉल्ड अप है, मतलब शेयर्स पार्टली पेड अप है। तो एडजस्टमेंट 1A क्या कहता है, मेक द शेयर्स फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल, है ना स्टूडेंट्स। तो मेक अ कॉल रिसीव अ कॉल की एंट्री देखो मैंने यहाँ लिखा, इक्विटी शेयर कॉल डेबिट 2,50,000, इक्विटी शेयर कॉल क्रेडिट 2,50,000, वो कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, जनरल रिजर्व डेबिट बचता है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट बचता है। शेयर कैपिटल क्रेडिट किया, लाइबिलिटी क्रेडिटेड मतलब लाइबिलिटी में ऐड करना चाहिए, तो देखो मैंने यहाँ पे कॉल इज मेड ऐड किया। जनरल रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, रिजर्व में आता है, इसको डेबिट किया तो माइनस होगा, लाइबिलिटी डेबिट किया तो माइनस, यहाँ पे माइनस किया। दिस वाज एडजस्टमेंट 1A। बी क्या कहता है, इश्यू बोनस शेयर्स फॉर, सॉरी इश्यू फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक डेबिट किया, हम लोग बैलेंस शीट बनाते में ऐसे प्लस माइनस करते थे ना, बैंक इज एन एसेट, एसेट डेबिट किया तो ऐड, सो बैंक अकाउंट में देखो ऐड।
इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट किया मतलब ऐड, तो यहाँ पे भी मैंने ऐड। 1C बोनस, बोनस का मैंने पहले कैलकुलेशन किया, दिस इज द आंसर। बोनस का 2 एंट्री पास किया। एक्चुअली CRR डेबिट करना चाहिए, कैपिटल रिजर्व डेबिट करना चाहिए, सिक्योरिटी प्रीमियम, बट एडजस्टमेंट कहता है नहीं जनरल रिजर्व डेबिट करो, तो आई डेबिटेड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डेबिट मतलब लाइबिलिटी डेबिटेड मतलब माइनस। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर कैंसिल हो जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट मतलब ऐड, सो हियर आई एडेड। I guess all my students, so this is an important adjustment. अब स्टूडेंट्स मैं सब टोटल कर लूंगा and then I will record it to subscribed capital. 10 lakh plus ये 250, 250, 250, 7 lakh 50 है सब टोटल। सो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट? 17,50,000 हो गया। ये सुनो, so total amount of share capital is now 17,50,000. फ्रेश इश्यू कितने का बोला था मैंने? 2,500 शेयर्स ऑफ 100। खाली मिस्टेक नहीं हो जाए इसके लिए चेक कर लेता हूँ बाद में, नहीं तो 2,000 बराबर 2,50,000 था। और कॉल कितने का था? 12,500 इंटू 20, वो भी 2,50,000 का था, ये भी हो गया। और बोनस हमको कितना आया था? 12,500। हाँ ये नंबर रॉन्ग लिख दिया स्टूडेंट्स, अभी मुझे क्लिक हुआ। ये फ्रेश इश्यू किया था ना, तो फ्रेश इश्यू पे भी बोनस मिलेगा। आई एम सॉरी, मैं भूल गया। हम लोग ने बाय बैक में ऐसा ही किया, फ्रेश इश्यू ऐड करके लिखते थे। 12,500 प्लस 2,500, सो टोटल नंबर विल बी 15,015। अमाउंट चेंज हो जाएंगे, सो 15,000 डिवाइड बाई 5, तो दिस विल बी 3,000। So 3,000 into 100 will be 3 lakh. I'm really sorry students, गलती हो गई, माफ करना। So this एंट्री सब सेम रहेगी, इंस्टेड ऑफ 2,50,000 विल राइट 3 लाख। बाकी कंसेप्ट टेक्निक वही रहेगा स्टूडेंट्स, मैंने अमाउंट रॉन्ग लिख दिया। जब भी बोनस देते हैं हम लोग फ्रेश इश्यू को भी इंक्लूड करते हैं। वी हैव डिस्कस दिस अंडर बायबैक और रिडम्पशन ऑफ शेयर्स में भी डिस्कस किया है, मैंने गलती कर दी। दैट इज द रीजन आई राइट विद पेंसिल स्टूडेंट्स। क्या क्लासेस में सॉल्व करो स्टूडेंट्स के सामने ना, तो समवन पॉइंट्स आउट अगर मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पॉइंट आउट करने वाला कोई नहीं स्टूडेंट्स, सभी खुद मैनेज करना है, तो गलती हो जाती है। सो दिस इज 3 लाख, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग 2,50,000 यहाँ पे बोनस में मैं 3 लाख ऐड करूँ। दिस वॉज माई मिस्टेक, अगेन आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, अच्छा नहीं लगता। सो अगेन आई रिपीट, क्या गलती हुई स्टूडेंट्स? 12,500 शेयर्स हमको दिया था, ये 12,500, बट हमने फ्रेश इश्यू भी किया ना 2,500 शेयर्स का, ये मैं ऐड करना भूल गया। दिस 12,500 ये नया शेयर नहीं था, ये 12,500 शेयर्स पे हमने कॉल्स किया था, सो डोंट ऐड दिस। बट ये तो क्लियरली मैंने टर्म लिखा है फ्रेश इश्यू, तो ये नया है ना, तो नए को ऐड करना चाहिए था ना, मैं भूल गया वो ऐड करना। इसके लिए 12,500 प्लस 2,500 इज 15,000। ओके, सो नाउ शेयर कैपिटल विल बी 10 प्लस 250 इज 15, 15 प्लस 3 इज 18 लाख इज योर शेयर कैपिटल। और डिवाइड बाय 100 करेंगे 18 लाख को, तो विल गेट द नंबर ऑफ शेयर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, सॉरी 18 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100, अमाउंट इज 18 लाख। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी बोनस इश्यू होता है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने बाय बैक में लिखा है ऑफ द अबाउ, कितने शेयर्स हमने बोनस इश्यू किए? ऑफ द अबाउ 3,000 शेयर्स आर issued as fully paid bonus share। ये ऐसा लिखने का, whenever there is अमाउंट कॉलम में नहीं जाना चाहिए, नीचे स्पेस नहीं है, तो आई रिकॉर्डेड हियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 3,000 शेयर्स मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया ना, 3,000 शेयर्स। सो ऑफ द अबाउ ऑफ दिस 18,000, 3,000 शेयर्स आर बोनस शेयर्स, ये ऐसा लिखना जरूरी है। सो स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट मैंने डायरेक्टली शेयर कैपिटल जो 10 लाख दिया था ना, इसके लिए मैंने नहीं लिखा था। when we were going through the trial balance, सब पोस्टिंग्स किया था, शेयर कैपिटल मैंने 10 लाख नहीं लिखा था बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसमें इतने सारे एडजस्टमेंट्स थे। एंड प्लीज यू हैव टू कॉपी दिस, इट्स पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आप वर्किंग नोट की तरह इसको कॉपी करो, मैंने एडजस्टमेंट नंबर भी डाल दिया है, तो ताकि बाद में आपको वापस नोट नहीं लिखना पड़ेगा। 1A 1B 1C यहाँ भी मैंने लिख दिया।
1A 1C 1B दोनों इफेक्ट मैंने लिख दिया है. ओके और ये जर्नल एंट्रीज भी आपको कॉपी करना है तो कर लो, आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स के वाई क्यों प्लस किया क्यों माइनस किया. एग्जाम में एंट्रीज रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं इन फाइनल अकाउंट्स. ठीक है. ओके नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. ये भी इंपॉर्टेंट है बट इसका इफेक्ट सिंपल है स्टूडेंट्स, इसके इतने सारे इफेक्ट्स नहीं होंगे. एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक, ये कंपनी है ना, उसने अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है. क्या इंस्ट्रक्शन दिया है? 1 लाख इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम करंट अकाउंट. स्टूडेंट्स ट्रांसफर करना है मतलब खाते से पैसा आपके जा रहा है, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है मतलब माइनस. ओके सो सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है. एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन टू बैंक 1 लाख इज टू बी ट्रांसफर्ड, यहां से निकाल दो 1 लाख. तो यहां से निकल रहा है तो कहां जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है. इज ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू अकाउंट ऑफ सुमेधा. ये कंपनी का नाम जो दिया है संपदा है. संपदा ना सुमेधा को पैसा दे रही है. क्यों दे रही है उसका रीजन दिया है. कंसिडरेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब इट इज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. ये कंपनी संपदा दूसरे कंपनी को पेमेंट दे रही है और बदले में शेयर्स ले रही है. सो इट इज नथिंग बट परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. और स्टूडेंट्स ऐसे भी क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो आगे ब्रैकेट पढ़ो. देखो आगे क्या मेंशन किया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दैट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट. आगे समझ में. तो ये संपदा जिसका हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं स्टूडेंट्स. ओके उसने क्या किया, अपने बैंक को कहा कि प्लीज 1 लाख ट्रांसफर करो. किसको ट्रांसफर करो? सुमेधा. सुमेधा नाम की कोई दूसरी कंपनी है. किस पर्पस के लिए? एज ए कंसिडरेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर, मतलब आप 1 लाख वो कंपनी को दोगे, बदले में शेयर्स लोगे. सो यू आर रिसीविंग, संपदा इज रिसीविंग शेयर्स. कंपनी अगर शेयर्स इश्यू करती है तो उसके लिए कैपिटल होता है, और कंपनी अगर शेयर्स रिसीव करती है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है. सो दैट इज द रीजन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. एंड अमाउंट हमें पता चल गया, यहाँ पे था 1 लाख, तो वही 1 लाख में यहाँ लिख रहा हूँ. समझ में आ गया. तो एडजस्टमेंट ऐसे डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स, तो ये क्लिक नहीं होगा. मीनिंग क्या होता है इसका? सो यू आर इंस्ट्रक्टिंग बैंक ट्रांसफर करो, यहाँ से पैसा निकालो, तो यू हैव टू डिडक्ट. किस पर्पस के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. यू आर ट्रांसफरिंग इट टू सुमेधा फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग इक्विटी शेयर्स. तो आप दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद रहे हो, मतलब आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है. इसके लिए सेकेंड इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में गया. सो एडजस्टमेंट नंबर 2, उसका 2 इफेक्ट. स्टूडेंट्स अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपके लिए अच्छा रहेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ, यहाँ लिख दूँ एडजस्टमेंट नंबर 2 है, एंड दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 2. इसे मैंने पेंसिल से लिखा है, आप भी लिख लोगे तो आपके लिए अच्छा है स्टूडेंट्स. दिस इज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट 2, एडजस्टमेंट 2. ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होंगे ना स्टूडेंट्स तो लिखने का, सो दैट कभी आप रिवीजन करोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो नहीं दिया है ना स्टूडेंट्स. ठीक है. हाँ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा है स्टूडेंट, तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं. मार्केट वैल्यू वहां पे दिया है ना ब्रैकेट में, मार्केट वैल्यू ₹105,000 है ना. मार्केट वैल्यू ऐसे लिखते थे ना. अब नंबर 3 सिंपल है. वन ऑफ द कस्टमर मतलब डेटर has made payment, क्या लिखा है, डायरेक्टली पेड 30,000 टू वन ऑफ सप्लायर. ये मेरा डेटर है ना, संपदा का डेटर है, तो इसको पैसा किसको देना चाहिए? संपदा को. तो इसने संपदा को पैसा नहीं दिया. व्हाट ही डिड, संपदा का एक क्रेडिटर है उसको पेमेंट कर दिया डायरेक्टली. डेटर ने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को. तो डेटर से क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐड सब्ट्रैक्ट. डेटर्स पेमेंट कर रहा है मतलब डेटर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, माइनस पेड टू क्रेडिटर. संपदा के पास पैसा आना चाहिए था, उसके पास नहीं आया, उसके बजाय किसके पास चला गया? क्रेडिटर्स. कोई बात नहीं स्टूडेंट्स. कैसा होता, पहला डेटर पैसा किसको देता? संपदा. फिर संपदा किसको देती? क्रेडिटर. ऐसे ही होता ना स्टूडेंट्स, बिजनेस में ऐसे ही होता ना. आप डेटर से कलेक्ट करते हो और क्रेडिटर्स को जो आपके हैं उनको पेमेंट करते हो आप. ठीक है. सो उसने क्या किया, डायरेक्टली पेमेंट कर दिया. बट एक तरह से वैसे ही हुआ ना कि यू आर कलेक्टिंग कैश फ्रॉम डेटर. सो डेटर से कैश कलेक्ट करना मतलब माइनस करने का. हाउ मच यू हैव कलेक्टेड? 30,000, 30. और एक तरह से ये पेमेंट है स्टूडेंट्स. सो वी विल से पेमेंट फ्रॉम डेटर. मेरा डेटर है तो मुझे कलेक्ट करना चाहिए और पेमेंट मुझे करना चाहिए क्रेडिटर को, है ना स्टूडेंट्स. बट मैंने डेटर को फोन करके क्या कहा, भाई मेरे पास पैसा लेके मत आओ, मुझे पेमेंट करो मत करो, आपके बाजू में आपके पड़ोस में जस्ट आपके एडजेसेंट एक शॉप है, वहां पे जाओ, मेरा क्रेडिटर है, मेरा नाम बोल के उसको पैसा दे दो. ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स बिजनेस में. इंस्टेड ऑफ आप इतना दूर मेरे पास आओगे, डोंट कम टू मी, देयर इज अ क्रेडिटर टू होम आई हैव टू मेक अ पेमेंट. आपके पड़ोस में रहता है, उसके घर पे जाके ये पैसा दे दो. आगे सुन में
डेटर सपोज लंबा रहता है बोरीवली, उसको आने को टाइम लगेगा स्टूडेंट्स. व्हाट आई सेड, डोंट कम विथ 30,000 टू मी. बोरीवली में मेरा एक क्रेडिटर है, उसको जाके मेरी तरफ से पेमेंट कर दो. सो पॉसिबल है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल है. सो माइनस फ्रॉम डेटर्स, माइनस फ्रॉम क्रेडिटर्स. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 3. मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज एडजस्टमेंट 3, दिस इज एडजस्टमेंट 3. अभी 4 तो सिंपल है. डायरेक्टर्स प्रपोज टू ट्रांसफर पहले भी किया है स्टूडेंट्स हमने. यहाँ पे ऐड होगा ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, और पीएनएल में हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. कितना ट्रांसफर करने बोला है स्टूडेंट्स, 1 लाख. सो यहाँ पे 1 लाख ऐड होगा, नेट आंसर बाद में देखते हैं. और यहाँ पे 1 लाख सबट्रैक्ट होगा, नेट आंसर बाद में देखते हैं. लास्ट फाइनली डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड एट 10% ऑन रिवाइज्ड शेयर कैपिटल. तो स्टूडेंट्स हम लोग एक छोटा सा नोट लिखते हैं ना उसके लिए. सो आप नोट लिख लेना स्टूडेंट्स, डिक्लेयर्ड डिविडेंड एट 10% ऑन रिवाइज्ड शेयर कैपिटल मतलब 18 लाख पे. सो 18 लाख का 10%, 1,80,000. फाइनली मैंने पहले ही बता दिया, वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज इंजर्ड बाय वर्किंग द कंपनी हैज फाइल्ड अ सूट फॉर डैमेज. मतलब कोर्ट केस. कोर्ट केस क्या होता है स्टूडेंट्स, कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो स्टूडेंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी का हम लोग नोट नंबर 12 लिख लेंगे. ये बैलेंस शीट में नहीं जाता, इसको हम लोग अलग से ही लिखते हैं, नोट नंबर 12. दिस वाज नॉट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी. वे क्या लिखें स्टूडेंट्स, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी. एक वर्कर ने आपके अगेंस्ट केस किया है, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी. अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है स्टूडेंट. एंड हाउ मच दैट क्लेम, 3 लाख. डोंट रिकॉर्ड इन अमाउंट कॉलम, बस ऐसे ही लिखना है. एंड इट विल नॉट गो टू बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा. क्लेम अगेंस्ट द कंपनी एंड इट्स अ बेटर, नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट. एक्नॉलेज एज डेब्ट अभी तक मतलब ये एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं बना है स्टूडेंट्स. जब कोर्ट केस का फैसला हो जाएगा देन आई विल नो ना कि 3 लाख पेमेंट करना है कि नहीं करना है. राइट नाउ इट इज नॉट कंफर्म. हाँ, उसका लीगल एडवाइजर उसको बोल रहा है कि फेवर में आएगा आपका डिसीजन. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट स्टूडेंट्स. ये देखो, ठीक है, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेब्ट, 3 लाख इज द अमाउंट गिवन. दिस वोंट गो टू बैलेंस शीट. देखो बैलेंस शीट में कहीं कंटिंजेंट लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है. ये जस्ट आपको ऐसे लिखना है. हाँ, डिविडेंड लिखा ही नहीं है मैंने, वो आप लिख लेना. डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड मैंने बताया ना, आप कहीं भी एक नोट लिख लो जहां भी जगह होगा नीचे. बहुत बार पहले मैंने किया, डायरेक्टर्स रिकमेंडेड डिविडेंड 18 लाख इंटू 10% इज इक्वल टू 1,80,000. देर आर नो मोर एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स, डन. अभी आपको सिर्फ टोटल करना है और बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है. सो इसका टोटल करेंगे तो 18 लाख ही होगा. रिजर्व्स का ध्यान से पहले आउटर कॉलम में लिख लेते हैं. 1 लाख प्लस 1 लाख तो ये हो जाएगा 2 लाख. दिस इज 850 माइनस 250 माइनस 250. सो 250 55 लाख. सो ये 350 होगा नेट आंसर जनरल रिजर्व. पीएनएल 193,400 प्लस 5 लाख 50 माइनस 1 लाख 643,400. रिजर्व्स का टोटल 3 लाख 125, 2 लाख 3 लाख 50, 643,400, 16 lakh 18,400. Then 5 plus 5, this will be 10 lakh. 858,400, 858,400 minus 30. So this is 828,400. 828,400. इसका टोटल भी सेम होगा 828,400. यहाँ पे आ जाओ, ये तो सेम है 54,450. एसेट की वैल्यू सब 10 लाख प्लस 1,460 प्लस 1 लाख 30. सो टोटल ये तीनों का टोटल इज 25,90,000. 25,90,000 ऊपर लैंड का है 3 लाख. सो इट बिकम्स 28,90,000. ओके. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, ये टोटल करेंगे तो 1 लाख ही रहेगा. स्टॉक 8,30,000 ही रहेगा. दिस 1,018,750 माइनस 30
30,000 था ना, एक मिनट, 1,018,750 minus 30, so it is 9,88,750. so total भी सेम रहेगा 9,88,750. cash 225 plus fresh issue 250 and minus 1 lakh, so it is 375 total. $375 plus 2,500, so 377,500. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 15,000. कंटिंजेंट लायबिलिटी बस यही रहेगा स्टूडेंट्स. आप ये टोटल सब यहाँ लिख लेते हैं. नंबर 1 18 लाख, नंबर 2 was the 16 lakh 18,400, 1,618,400. 3 is 10 lakh. There is no long term provision. 4 828,400, 828,400, तो कुछ नहीं. नंबर 5 is 54,450. 6 is 28,90,000. 7 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स था ये 1 लाख. 8 830. 9 988,750. 10 377,500 एंड 15,000 ये था. अदर करंट एसेट नहीं, टोटल कर लेते हैं. 18 lakh plus 1,618,400. So how much is the total, students? एक मिनट याद लो. 34 lakh 18,400. Long term borrowings 1 lakh. 828,400 plus 54450. 882850 plus 1 lakh plus 341,8400. 44,01250. 28 lakh 90 plus 1 lakh will be 29 lakh 80. 8 lakh 30 plus 9,88,750. 377,500 and 15,000. 22 lakh 11,250 plus 29 lakh 80. इतना डिफरेंस आ रहा है. 51 lakh 91,250. इतना ह्यूज डिफरेंस. कोई भूल तो नहीं गया स्टूडेंट्स में? अच्छा, दिस इज 10 लाख. सॉरी, ये 1 लाख नहीं है स्टूडेंट्स, ये 10 लाख है. डबल 10 लाख है. 3418,400 प्लस 10 लाख 882850. तब भी डिफरेंस आ रहा है. चलो देखते हैं, कुछ मिस कर गया होगा मैं. 53 लाख 053,01250. लेट मी चेक स्टूडेंट्स. कुछ रिजर्व्स वगैरह में मैंने तो रिजर्व्स थे, एडजस्टमेंट था, बाकी तो सब सिंपल था स्टूडेंट्स. Capital reserve, security premium, debenture redemption is 1 lakh plus 1 lakh 2 lakh. General reserve 8 lakh 50 minus 2 lakh 50 minus 8 lakh 50 minus 2 lakh 50 minus 2 lakh 50. That is 3 lakh 50,000. अच्छा हाँ, बोनस हमारा कितना था? बोनस इश्यू वॉज 3 लाख. अच्छा, यहाँ मैंने चेंज करना भूल गया. हाँ, इसी है. सॉरी मेरा मिस्टेक है. एक जगह 3 लाख लिख दिया, एक जगह 2 लाख 50. सॉरी, ये 3 लाख है. ये मैंने नंबर्स चेंज किया, नंबर ऑफ शेयर. सो आई गॉट 3 लाख. तो शेयर कैपिटल में मैंने 3 लाख लिखा, बट रिजर्व्स में मैंने उसको कितना लिख दिया था? दिस इज 3 लाख. सो 8 लाख 50
minus 2 lakh 50 and minus 3 lakh. So this will be 3 lakh. ये 3 लाख होगा. P&L भी चेक कर लो. 193,400 प्लस 5 lakh 50 माइनस 1 lakh 643,400. तो ये टोटल चेंज होगा. बोनस का मैंने अमाउंट गलत लिखा था, कैलकुलेशन सही किया था, बट अमाउंट आई रिकॉर्डेड रॉन्ग. फिर भी एक बार रिजर्व देख लो जल्दी से. ट्रायल बैलेंस में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, करंट एसेट, इंटरिम डिविडेंड. कहीं इंटरिम डिविडेंड हाँ यहाँ आएगा ना स्टूडेंट्स. सॉरी स्टूडेंट्स, जब मैंने रीड किया था ना, इस साइड क्या विल रिकॉर्डेड अंडर P&L, और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया. जब आप लेक्चर शुरू से सुनोगे ना, तो दैट स्टेज आई सेड स्टूडेंट्स कि आई विल रिकॉर्ड इंटरिम डिविडेंड अंडर रिजर्व्स. P&L से माइनस करूंगा, बट मैं यहाँ माइनस करना भूल गया उसको स्टूडेंट्स. ये एडजस्टमेंट नहीं है, दिस वाज गिवन इन ट्रायल बैलेंस. मैंने रीड किया था एंड आई सेड कि मैं जब P&L लिखूंगा तो आई विल सबट्रैक्ट, और मैं सबट्रैक्ट करना भूल गया. तो 643,400 माइनस 50. सो P&L इज 593,400. P&L इज 593,400. 593,400 प्लस 3 lakh. This is 3 lakh plus 2 lakh plus 125 and plus 3 lakh. So 15 lakh 18,400. 1 लाख का डिफरेंस तो ये था स्टूडेंट्स. सो दिस इज नॉट 16 लाख, दिस इज 15 लाख. इसके लिए मैं पेंसिल से लिखता हूँ 151. सो दिस विल बिकम 33. 18 plus 15 is 33. So 33 lakh 18,400 plus 10 lakh plus 882850. So 52,01250. This is the total. अभी बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं. 28 लाख 90 प्लस 1 लाख, ये तो बराबर है स्टूडेंट्स. नंबर 8 तो सिंपल था, एक ही अमाउंट था. दिस इज ऑल्सो वॉज वेरी इजी. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था हमारा, उसमें उतना ही था ना. अब इसका टोटल कर लेते हैं. 29 लाख 80 प्लस, अच्छा ये पहले 8 लाख 30 प्लस 988,750. देन नेक्स्ट इज 377,500. 15,000. 22 लाख 11,250 प्लस 29 लाख 80. 52 आ रहा है, ये 51 आ रहा है. ट्रायल बैलेंस, लेट मी गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस, कुछ मिस तो नहीं करके. 28 लाख 90 प्लस 1 लाख. टोटलिंग एरर स्टूडेंट, मिस्टेक इज टोटलिंग एरर. 2890 प्लस 1 लाख इज 2990. मैंने 2890 यहाँ 8 लिखा था, इट इज 9. तो ये टोटल में गड़बड़ किया था. 29 लाख 90 प्लस 22,11250. सो टैली होता है. मैंने मिस्टेक क्या किया था, एक मिस्टेक तो क्या था, वाई बैलेंस शीट वॉज नॉट टैलिंग. यहाँ पे बोनस 3 लाख लिखा बराबर जो आंसर आया था, बट रिजर्व से माइनस 3 लाख करना चाहिए. मैंने 250 किया था, वो गलत किया था. दोनों जगह सेम अमाउंट होना चाहिए ना स्टूडेंट. दिस वाज द मिस्टेक. हाँ, इंटरिम डिविडेंड व्हाइल रीडिंग ट्रायल बैलेंस आई सेड कि मैं पोस्टिंग्स में P&L से माइनस करूंगा, बट मैं भूल गया था माइनस करना. ये ट्रायल बैलेंस का आइटम था, मैं इसको स्किप कर गया, इसके लिए टैली नहीं हो रहा था. और ये टोटल में गड़बड़ था, मैंने ये मिस्टेक था स्टूडेंट. जस्ट आई स्किप्ड, और यहाँ मैंने 2 लाख 50 लिखा था इंस्टेड ऑफ 3 लाख, और ये ट्रायल बैलेंस का आइटम मैं भूल गया था. ओके, सो दिस इज मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. और सिर्फ बैलेंस शीट ही पूछा था इसके अंदर. सो ये आपका सब शेड्यूल्स हैं. और ये आपका बैलेंस शीट है. We are solving now April 2009. April 2009. Following are the trial balance, schedule of fixed asset and additional information of Satyam Limited as on 31st March 2008. Equity share capital, 10% preference share capital, profit and loss, reserves and surplus, preliminary expenses, other non-current asset, prepaid expense, short-term loans and advances, underwriting commission, other non-current asset,
forfeited share account, reserves and surplus. Fixed asset, अच्छा forfeited shares है, देखते हैं आगे स्टूडेंट्स. ओके, हो सकता है एडजस्टमेंट हो, लेटर ऑन विल डिसाइड. फिक्स्ड एसेट नेट ब्लॉक, सो फिक्स्ड एसेट में जाएगा. नेक्स्ट इज आफ्टर फिक्स्ड एसेट, creditors trade payable, debtors trade receivable, loan from Bank of India, it is long term borrowings. Loan from Bank of India is long term borrowings. Interest accrued but not due on loan, other current liability. 12% deposits from public, it is given on credit side, na? Long term borrowings. Deposit from customers, other current deposit from customers, other current liability. Cash in hand, cash and cash equivalent. Cash at bank, cash and cash equivalent. Interest accrued and due on deposits from public, other current liability. Outstanding expense, other current liability. Stock in trade on 31st March. Stock in trade means closing stock, so inventory is में जाएगा. Okay. Then they have given us fixed asset schedule students. उसमें देखो कहीं कहीं पे क्वेश्चन मार्क है और कहीं कहीं पे डैश है. That question mark means students we have to find that answer. वो आंसर हमको कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है. और जो डैश डैश है दैट मीन्स वो जाने दो, वो फाइंड नहीं कर सकते, मतलब वो नील है, वो कॉलम में ही नील है वो, ठीक है. सो क्वेश्चन मार्क जो है हमको फाइंड करना है. विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, वो पूरा शेड्यूल हम लोग डिस्कस करेंगे. देन एडजस्टमेंट सब सिंपल है. ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1,50,000 equity shares of 10 each and 5,000 10% preference shares of 100 each. Preference shares, out of the above equity share capital, 10,000 equity shares have been allotted for consideration other than cash. Dividend on preference shares in arrears for 3 years, including for the current year. ऐसा लिखा है, ठीक है. Debtors of the debtors, rupees 136,949 are due for more than 6 months. Debtors and advances are unsecured but considered good. Bills receivable of 25,000 maturing on 31st May have been discounted with bank. Ignore previous year figures. Okay, so start करते हैं. So पहले हमको शेड्यूल्स नोट्स डिसाइड करने पड़ेंगे, कितना नोट्स बनाना है. ओके, सो बैलेंस शीट. शेयर कैपिटल तो पक्का बनाना ही है, नंबर 1. रिजर्व्स भी दिया है, नंबर 2. रिजर्व्स एंड सरप्लस था ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस. देन लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. एनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स था नहीं स्टूडेंट्स. देन ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स वगैरह कुछ था, क्रेडिटर्स, इक्विटी, प्रॉफिट, प्रीमियरी, प्रीपेड एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट. डेटर्स था, लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट अक्रूड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं स्टूडेंट्स. ट्रेड पेएबल्स नहीं है. अदर करंट लायबिलिटी है, यस 4. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, नो. फिक्स्ड एसेट है, नंबर 5. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो. नहीं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं था ये क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज आफ्टर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस, नो. अदर नॉन करंट एसेट, यस. एक फिक्टिशियस एसेट दिया था वहाँ पे, कहाँ गया वो फिक्टिशियस एसेट? प्राइमरी एक्सपेंसेस था ना स्टूडेंट. एंड अंडरराइटिंग कमीशन भी है. ओके, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन ट्रेड था कुछ, हाँ, लास्ट आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस 7. ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स 8. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक भी था 9. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यानी प्रीपेड एक्सपेंस था स्टूडेंट्स, यस 10. That's all. So in all हमको 10 नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है. 10 नोट्स बनाने हैं. So स्टार्ट करते हैं. Notes to accounts. Number 1. शेयर कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल, जैसे मैंने कहा था कुछ स्टूडेंट्स, यस था, ऑथराइज कैपिटल था. सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट. सो 3 लाइनों के लिए रखते हैं. देन इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप.
issued, subscribed, paid up. Next is इसके लिए 1 2 3 4. Number 2, reserves and surplus. कितने रिजर्व दिए थे स्टूडेंट्स, एक बार चेक कर लेते हैं. इक्विटी शेयर पर पीएनएल था. फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट देखते हैं बाद में. डिपॉजिट खाली एक ही था स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देयर इज नो अदर फ्री. और कोई रिजर्व नहीं दिया हमको, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दिया. ओके चलो, रिजर्व्स में एक ही है. सो नंबर 3 हमने डिसाइड किया था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. इसमें कि वो बैंक लोन था एक, और वो भी था 12% डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. एंड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था. नंबर 4 इज व्हाट स्टूडेंट्स. 4 हमने डिसाइड किया था अदर करंट लाइबिलिटी. ओके. नंबर 5 स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट है. देखो स्टूडेंट्स, मैंने नंबर 5 यहाँ बनाया है नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स. नंबर 5 फिक्स्ड एसेट फॉर द सिंपल रीजन ना, वो सिंगल पेज पे बनेगा नहीं, इट रिक्वायर्स अ डबल पेज. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे जहाँ पे शेड्यूल बनाएंगे, नो नीड टू वरी. ओके, सो मैंने फिक्स एसेट बनाया, मैं इसको फिल बाद में करता हूँ स्टूडेंट्स. सो नंबर 5 मैंने ये पेज पे बनाया बिकॉज आई रिक्वायर अ डबल पेज इसके लिए. चलो नंबर 4 5 उधर हो गया से अदर करंट लाइबिलिटी. नंबर 6 अभी बना रहा हूं मैं. नंबर 6 इज व्हाट, अदर नॉन करंट एसेट. अदर नॉन करंट एसेट. सेवन यहाँ पे बना रहा हूं. 7 इज इन्वेंट्रीज. 8 trade receivables. 'डेटर्स दिया था ना, बिल्स रिसीवेबल तो शायद नहीं था, ओनली डेटर्स इज गिवन, बट उसमें एडजस्टमेंट है. सो नंबर 9 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लास्ट नंबर 10 कैश इन हैंड कैश एट बैंक दोनों था. यस, लास्ट नंबर 10 वाज शॉर्ट टर्म loans and advances. Okay, so now we start with posting students. शुरू से equity share capital 99,000 equity shares of 10 each. So here we'll write 99,000 equity shares of rupees 10. Like forfeited shares account भी दिया है, so we added to share capital, no doubt about that. But वो कभी कभी capital reserve में जाता है when shares are reissued. अभी reissued तो मैंने कहा नहीं, so that means वो forfeited shares account share capital में add होगा. But कौन सा share forfeit किया है, equity है किया है कि preference किया है, that is not specified. Okay, so once again I repeat students, share capital में ना forfeited shares account ना students, it is added to share capital, no doubt about that. बट यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो हमको दिया है उन्होंने वो मेंशन नहीं किया है कि वो इक्विटी के प्रेफरेंस, तो मुझे कंफर्म नहीं है. अच्छा, 99,000 था ना, इट वाज 99,000. तो स्टूडेंट्स ये 99,000 इंटू 10 करेंगे, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस 9,90,000. फॉरवर्टेड शेयर्स कैपिटल में ऐड होता है, बट वो इक्विटी के प्रेफरेंस मुझे पता नहीं, तो आई कैन ऐड डायरेक्टली टू इक्विटी. ओके, उसके बाद क्या था, 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. 10% cumulative preference share of rupees, कितना है, of rupees 100. amount given is 4 lakh. okay,
Next, profit and loss account 31st March 2008. Reserves and surplus, students. Amount given is how much? 4,09,000 है ना स्टूडेंट्स. बट स्टूडेंट देखो वो डेबिट साइड में दिया. डेबिट मतलब वो लॉस है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना. नेगेटिव है वो आंसर. डेबिट बैलेंस ऑफ रिजर्व मीन्स इट्स अ लॉस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अदर नॉन करंट एसेट हियर नंबर 6 में. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस other non-current asset, how much it is given? 14,014. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो आउटर कॉलम है. नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. प्रीपेड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है स्टूडेंट्स? 9,000. स्केल रख के देखूं तो अच्छा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इन underwriting commission, again it is other non-current assets. Other non-current asset. Underwriting commission. If it is written off within 12 months तो उसको स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? other current asset में. ये ध्यान रखना. But here nothing is said, so मतलब after 12 months write off होगा. इसके लिए it is other non-current asset. Forfeited share account we must add it to share capital. So यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. Forfeited shares account. How much is the amount given? 6,000. Next, fixed asset. They have given us net block 4,85,000. स्टूडेंट देखो फिक्स एसेट मैंने यहाँ पे बनाया है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा. इसमें कुछ क्या हमको आंसर्स फाइंड भी करने, देयर आर मिसिंग अमाउंट्स, तो हम बाद में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अदरवाइज बाकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स इसके अंदर. क्रेडिटर्स 1,85,000. ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स तो बनाया ही नहीं मैंने. ठीक है, मगर एक ही था ना क्रेडिटर, तो चलो स्टूडेंट्स बच गए. 2 आइटम होगा तो शेड्यूल कंपलसरी हो जाता है. अभी एक ही है तो समहाउ वी कैन एडजस्ट. ट्रेड पेएबल्स के अगेंस्ट में आई कैन राइट क्रेडिटर्स कितना? 1,85,000. सो अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स, अगेंस्ट ट्रेड पेएबल्स वी कैन राइट 1,85,000. आपके रेफरेंस के लिए यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट आफ्टर क्रेडिटर्स डेटर्स. डेटर्स कितना है? 345. ट्रेड रिसीवेबल्स. बट स्टूडेंट्स देखो इसमें एडजस्टमेंट था वो ड्यू फॉर मोर देन 6 months वाला एडजस्टमेंट. इट इज गिवन एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो. सो विल गो टू डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में, और एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा है डेटर्स एंड एडवांसेस आर अनसिक्योर्ड बट कंसिडर्ड गुड. तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे अनसिक्योर्ड एंड गुड. ठीक है, फिर लिखेंगे ड्यू फॉर मोर देन 6 months. कितना है ड्यू फॉर मोर देन 6 months? 136,949. 136,949. देन स्टूडेंट्स अदर्स, डेटर्स कितना है टोटल? 3,45,000. सो अदर्स कितना बचेगा? subtract and get the answer. 345 minus 136,949. 208051. 208051. 3,45,000. Next students, loan from Bank of India secured against machinery. So students, long term borrowings में loan from, मैं short में BOI लिख देता हूँ, Bank of India, and it is secured against machinery. अमाउंट कॉलम में नहीं जाना चाहिए बट मैंने कर दिया है स्टूडेंट्स. ठीक है, secured against machinery. How much is that amount? 3,15,315. No adjustments, outer column. Next, interest accrued but not due on loan. Other current liability. Interest accrued but not due. How much it is given students? 31,500. 31,500. Next, 12% deposit from public. क्रेडिट साइड पे दिया है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिख रहा हूँ. 12% deposit
12% deposit from public. Amount given is 2 lakh. Amount given is 2 lakh. Deposit from customers. Customers से deposit लिया. थोड़ा सा इसका डाउट होता है स्टूडेंट्स मुझे. It can go to short term loans एडवांसेस में भी जा सकता है, अदर करंट एसेट में भी. लेट मी थिंक तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स किसमें लिखूं इसको. Deposit from customers can be डिपॉजिट. डिपॉजिट है. कैन बी अदर करंट एसेट ऑल्सो. थोड़ा सा रुक जाता हूँ स्टूडेंट्स में, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा मुझे सोचने का. वे शुड आई रिकॉर्ड. फिर गलत पोस्टिंग से अच्छा है यू मस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड द करेक्ट थिंग ना स्टूडेंट्स. सो डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स. डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स कितना है 35 ना, वो रुक गए. नेक्स्ट इज कैश इन हैंड 3,85,000. जस्ट ध्यान रखना डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स बात है. कैश इन हैंड कितना है. कैश में 3,85,000. 3,85,000. नेक्स्ट क्या है. कैश एट बैंक. कैश एट बैंक हाउ मच 1,65,000. 165. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू. इंटरेस्ट अक्रूड बट इट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड सो लाइबिलिटी होगा. क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस का मतलब स्टूडेंट्स या तो लाइबिलिटी है या तो इनकम. बट वो डिपॉजिट पे डिपॉजिट लाइबिलिटी था तो उसका इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी. इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू हाउ मच इज गिवन 24,000. 24. लास्ट फाइनली नहीं सेकेंड लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगेन अदर करंट लाइबिलिटी. Outstanding expense, how much they have given? Outstanding expense is 17,500. Next, stock in trade मतलब inventory students यहाँ पे लिखेंगे stock in trade. How much is the amount given? 3,84,500. No adjustments, so outer column में लिख लेते हैं 3,84,500. ठीक है. Now student देखो जो फिक्स एसेट शेड्यूल दिया है ना, मैं वो सेम ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. हाँ कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, जैसा वो दिया है वैसा ही कॉपी कर रहा हूँ. ये फर्स्ट कॉलम उन्होंने नेम ऑफ एसेट के लिए रखा है. नेक्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स ग्रॉस ब्लॉक. ग्रॉस ब्लॉक को आप कह सकते हैं ओरिजिनल कॉस्ट. मैं शॉर्ट यहाँ लिख देता हूँ चलो ठीक है. ग्रॉस ब्लॉक ऑल्सो मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स ओरिजिनल कॉस्ट. आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया. देन नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन. वो समझाने की आपको जरूरत नहीं, आपको डेप्रिसिएशन पता है. एंड नेट ब्लॉक का मतलब स्टूडेंट्स रिटर्न डाउन वैल्यू WDV. वो मैं लिख देता हूँ. नेट ब्लॉक मीन्स यू कैन से इट इज WDV रिटर्न डाउन वैल्यू. ठीक है. अभी मैं सेम चीज कॉपी कर रहा हूँ. एसेट में उन्होंने नाम दिए हैं सब एसेट. पहला एक लैंड दिया है, बिल्डिंग दिया है, प्लांट मशीनरी. सिर्फ 3 एसेट है स्टूडेंट्स. ओके. ग्रॉस ब्लॉक में ओपनिंग दिया है, डेट भी दिया है स्टूडेंट्स. मैं डेट नहीं लिख रहा हूं. ओपनिंग बैलेंस. एडिशन कॉलम में एक. आई विल एक्सप्लेन ये एडिशन का मतलब क्या. एडिशन पहले लेट मी कॉपी द सेम थिंग. मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, सेम जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया वही कॉपी कर रहा हूँ. सिंपल है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट ऐसा कोई टेक्निकल चीज नहीं है स्टूडेंट्स. वो इजी है एकदम. अगेन ओपनिंग बैलेंस, एडिशन. एडिशन का वैसे सिंपल मीनिंग तो ऐड करना, वो तो कुछ नहीं. बट यहाँ पे टेक्निकली है क्या वो, आई विल डिस्कस दैट. नो नीड टू वरी. डिडक्शन एंड क्लोजिंग. सेम वे ओपनिंग नेट ब्लॉक एंड क्लोजिंग. 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग होगा, 31 मार्च इज क्लोजिंग. तो मैंने वो सब चीज लेट मी कॉपी दैट एंटायर थिंग स्टूडेंट. देखो ये तो क्वेश्चन मार्क है. ठीक है स्टूडेंट्स. ये हमको फाइन, तो जो फाइन करना है वो बाद में हम ढूंढेंगे कैसे करना है. विल डिस्कस दैट. ये 1,50,000 दिया है मुझको. 1,50,000 है. एंड प्लांट एंड मशीनरी में मुझे डाउट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरी टेक्स्ट, मैं अपने बुक की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स. मेरे पास जो बुक है ना, ओल्ड वाला बुक है, उसमें बिल्डिंग 1,50,000 दिया है, नीचे प्लांट 7 लाख दिया है. ठीक है चलो 7 लाख. देन स्टूडेंट दे हैव गिवन अस टोटल दिया. ये कॉलम का हमको टोटल दिया.
वो सब मिसिंग हम बाद में फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, पहले मैं पूरा स्टेटमेंट जैसा दिया है वो कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखो यहाँ पे उन्होंने डैश बोला है, मतलब ये आंसर फाइंड नहीं करना है, वो है नील है, वो दैट इज द सिंपल मीनिंग। ये नील है, इसके बारे में सोचो ही मत, दैट इज द सिंपल मीनिंग। नेक्स्ट आ जाओ, इसके सामने डैश है तो मत फाइंड करना, बट ये हमको फाइंड करना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बट दिस इज डैश। फिर हमको एक टोटल दिया है स्टूडेंट्स, टोटल दिया है 50,000, ठीक है। ऐसे ही क्लोजिंग में आ जाओ, तीनों में देखो मिसिंग है, हमको फाइंड करना है, ठीक है। ये 8,50,000 हमको दिया है उन्होंने, और तीनों आंसर हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है, बाद में आंसर सब बाद में फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें कोई ओपनिंग नहीं है, डैश दिया है उन्होंने। फिर 18,750 एंड 2,80,000, हियर इट इज 18,750 एंड 2,80,000, एंड देन दे हैव गिवन अस द टोटल। टोटल कितना दिया? 298,750, 298,750। एडिशन कॉलम डैश 2,500, 70,000, टोटल 72,500। ओके, नेक्स्ट डिडक्शन कॉलम डैश 6250, डैश 6250, डैश 6250, डैश 15,000, या क्वेश्चन मार्क के स्टूडेंट, सो विल फाइंड दैट, हाँ उसको फाइंड करेंगे। टोटल दिया है इसका, यस 3,65,000। देन ओपनिंग हमको सब फाइंड करना है, सब जगह क्वेश्चन मार्क है स्टूडेंट्स, टोटल भी नहीं दिया उसका। क्लोजिंग में दो आंसर हमको दिए, ये पहला वाला दिया है 50 एंड दिस इज गिवन एज 85। थर्ड हमको फाइंड करना है, फिर हमको टोटल मिलेगा, तो बाद में देखते हैं, ठीक है। ये तो हमको पूरा फाइंड करना है, सेकेंड लास्ट कॉलम। तो मैंने कुछ नया नहीं किया स्टूडेंट्स, एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आया ऐसा क्वेश्चन तो आपको ये बनाना पड़ेगा ऐसे ही स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आई जस्ट कॉपी दैट, जो जो मिसिंग है स्टूडेंट्स विल फाइंड इट, नो नीड टू वरी। अभी मैंने सिर्फ पोस्टिंग्स की है, पोस्टिंग्स डन हो गया, अभी स्टार्ट विद एडजस्टमेंट नंबर 1। ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, authorized capital of the company consists of 1,50,000 equity shares of 10 each. So यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 equity shares of rupees 10, तो हो जाएगा ये 15 लाख। and 5,000 10% preference shares of 100, 5,000 10% cumulative preference shares of rupees 100, तो 5,000 into 100 करेंगे तो 5 लाख। एंड स्टूडेंट्स व्हाट वी डू, वी ऑलवेज डबल अंडरलाइन, ये टोटल में नहीं आएगा। एंड ऑथराइज कैपिटल का एक ही इफेक्ट होता है, जाने दो, खत्म। सेकेंड, एडजस्टमेंट सब सिंपल है, ओनली दैट फिक्स एसेट का शेड्यूल वो इंपॉर्टेंट है। Out of the above equity share capital, 10,000 shares fully paid have been allotted for consideration other than cash. पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में किया है, जस्ट आपको ऐसा लिखना है, of the above 10,000 they have said equity shares are issued, स्टूडेंट्स अमाउंट कॉलम में जाना नहीं चाहिए, आपको पर्टिकुलर्स में लिखना चाहिए, आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या है, यू हैव इश्यूड शेयर्स बट बदले में इन रिटर्न यू हैव नॉट रिसीव्ड कैश, कैश के अलावा कुछ मिला है। दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज बिजनेस परचेज, जो अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में होता है। एक कंपनी दूसरे कंपनी का बिजनेस लेती है अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स, दैट इज अ सिंपल मीनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नंबर 3, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन अर्लियर्स फॉर 3 years। स्टूडेंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी याद आ गया, सो हम नोट नंबर 11 बनाएंगे, वहां पे लिखेंगे कंटिंजेंट लायबिलिटी। और ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है, जस्ट इसको ऐसे लिखना है। और क्या लिखा है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इन अर्लियर्स फॉर 3 years, अर्लियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितने साल से आउटस्टैंडिंग है, 3 years स्टूडेंट्स।
देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा कितना है 4 लाख, रेट ऑफ परसेंटेज डिविडेंड का कितना है 10%। यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ 4 लाख इंटू 10% इंटू 3 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स 4 लाख का 10% 40,000 इंटू 3 ईयर्स करेंगे तो 1,20,000। दिस वोंट गो टू बैलेंस शीट, ये टोटल ये 1,20,000 बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बस ये यहीं रहेगा अंडर नोट नंबर 11। बिकॉज इन बैलेंस शीट पहले भी मैंने डिस्कस किया है, देखो बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी नाम का कोई आइटम नहीं है, ठीक है। इसको कहते हैं ऑफ द बैलेंस शीट आइटम, ये बैलेंस शीट के बाहर ही रहता है स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में नहीं आएगा, जाने दो इसको। डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स हमने पहले ही कर लिया। बिल्स रिसीवेबल ऑफ 25,000 मैच्योरिंग ऑन 31st May 2008। स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस का डेट देखो, ट्रायल बैलेंस का डेट गिवन टू अस 31st March 2008 और बिल्स रिसीवेबल मैच्योर कब होगा May 2008, तो आफ्टर बैलेंस शीट डेट हो रहा है। अगर आपको याद हो गया आ गया हो, इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, दिस इज ऑल्सो कंटिंजेंट लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल मैच्योरिंग, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड लिखा होगा ना, हाँ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड लिखना चाहिए, मैं भूल गया। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड मैच्योरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अमाउंट हाउ मच दे हैव सेड, ₹25,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ था क्या? एक फोरफिटेड शेयर्स था वो हमने लिख लिया, और कुछ बाकी तो नहीं रह गया था, मैंने कहा था ना फोरफिटेड। एक बार मैं चेक, हाँ डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स अभी बाकी है, देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके पहले फिक्स एसेट शेड्यूल में कंप्लीट कर देता हूँ सो दैट आई गेट टाइम टू थिंक अबाउट दैट। थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स का स्टूडेंट्स, बेटर पोस्टिंग अच्छा हो, करेक्ट हो तो अच्छा होता है ना स्टूडेंट्स, सो आई गेट टाइम टू थिंक अबाउट दैट। अच्छा अभी हम लोग कर लेते हैं अपना पहले फिक्स एसेट शेड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो उसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं। पहला तो एक एसेट कॉलम, एसेट कॉलम का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स वहां पे उन्होंने हमको क्या दिया है, नेम ऑफ सब एसेट दिया है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, 3 एसेट। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स 3 और मेजर कॉलम है, एक है ग्रॉस ब्लॉक जिसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। हमने अकाउंट्स में ओरिजिनल कॉस्ट ही सीखा है, तो उसको यहाँ पे उन्होंने लिखा है ग्रॉस ब्लॉक। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्रॉस ब्लॉक के बाद उन्होंने दिया है डेप्रिसिएशन। अच्छा क्रॉस ब्लॉक में फिर कितने कॉलम्स है स्टूडेंट, देखो ध्यान से, ओपनिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एडिशन, डिडक्शन, इसी के नीचे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में आपके रेफरेंस के लिए, जस्ट बिलो दिस आई विल राइट। एडिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कॉलम का मतलब, एडिशन का मतलब लिख रहा हूँ, एडिशन मीन्स व्हाट, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो आप खरीदते हैं ना, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई एसेट आपने खरीदा है तो ये कॉलम में लिखा जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज व्हाट स्टूडेंट्स, डिडक्शन ना, डिडक्शन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, डिडक्शन इसका मीनिंग क्या होता है, डिडक्शन मीन्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, कोई एसेट अगर आपने बेचा तो उसको वो कॉलम में लिखते हैं। ओके सो ग्रॉस ब्लॉक ओरिजिनल कॉस्ट, एडिशन का मतलब होता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और डिडक्शन, ये डिडक्शन कॉलम का मीनिंग मैंने लिखा है, डिडक्शन मतलब एसेट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ओपनिंग, ये कॉलम को ऐड, क्योंकि ऐड लिखा भी है, डिडक्ट मतलब माइनस, ओपनिंग प्लस माइनस यू गेट क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस है कॉस्ट का, क्लोजिंग बैलेंस कॉस्ट का, ठीक है। सेम वे डेप्रिसिएशन ओपनिंग लिखा है, एडिशन का मतलब लिख रहा हूं स्टूडेंट्स अभी मैं, एडिशन मतलब क्या, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, ध्यान रखना यहाँ पे एडिशन का मतलब क्या लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। ये जो आपको आंसर होता है ना 72,500, ये आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है प्लांट का, ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग का, दैट इज द मीनिंग। एडिशन कॉलम का मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर। अभी स्टूडेंट्स मैं डिडक्शन का मीनिंग लिख रहा हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है। डिडक्शन का मीनिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जो एसेट आपने बेच दिया ना उसका डेप्रिसिएशन ये कॉलम में आता है। कोई बिल्डिंग बेचा है तो उसका डेप्रिसिएशन है, कोई प्लांट मशीनरी तो बेचा नहीं है, तो व्हेनेवर यू सेल एनी एसेट, जो एसेट बेचा उसका डेप्रिसिएशन आता है ये कॉलम में, विच इज नोन एज डिडक्शन। तो यहाँ पे देखो एडिशन का मतलब, ठीक है, एडिशन का अरिथमेटिक मैथ्स के हिसाब से मतलब ऐड, डिडक्शन मतलब माइनस, वो तो सिंपल चीज है। बट हमारे ये फाइनल अकाउंट्स के लिए ईयर एडिशन मीन्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शन मीन्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर।
ईयर एडिशन मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, डिडक्शन मतलब डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। फिर अगेन स्टूडेंट्स ओपनिंग, इसको ऐड करना, इसको माइनस करना, तो आपको आंसर क्लोजिंग मिलेगा। अभी नेट ब्लॉक स्टूडेंट्स, अभी मैं नेट ब्लॉक लिख रहा हूँ नीचे। नेट ब्लॉक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये WDV है, WDV। तो ये एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग ना, तो ओपनिंग इज इक्वल टू, ओपनिंग कैसे फाइंड करने का, ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक, शॉर्ट में मैंने GB लिखा है, या ओरिजिनल कॉस्ट या ग्रॉस ब्लॉक, माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। अगर नेट ब्लॉक फाइंड करना है ना, ये ओपनिंग है ना, नेट ब्लॉक मतलब WDV। WDV कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ओपनिंग WDV फाइंड करना है तो ओपनिंग कॉस्ट लेना और ओपनिंग डेप्रिसिएशन। अब क्लोजिंग WDV फाइंड करना है, नेट ब्लॉक, अगेन उसका मतलब WDV, और क्लोजिंग फाइंड करना है तो क्या करना, क्लोजिंग ग्रॉस ब्लॉक लेना, या क्लोजिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं क्लोजिंग, उसमें से क्लोजिंग डेप्रिसिएशन माइनस करना, तो आपको लास्ट कॉलम का आंसर मिलेगा। ओके, सो दिस इज द वे वी इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ये सब जो मिसिंग आंसर है ना, अभी ये हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, स्टार्ट पहला कॉलम से करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ओके, ये कितना है स्टूडेंट, देखो बड़ा आसान है, 9 लाख, ये 7, ये 150, ये मिसिंग है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट्स मिसिंग मतलब क्या हुआ, बैलेंसिंग फिगर, मतलब एक्चुअली वी आर नॉट डिस्कसिंग अकाउंट्स, प्योर सिंपल सा मैथ्स है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस करना है। टोटल आपको कॉलम का दिया है 9 लाख, जिसमें से 2 आंसर पता है, सो थर्ड क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर, तो -7 लाख एंड -1,50,000। सो हाउ मच वी गेट, 50,000। सो हियर आई विल रिकॉर्ड 50, ये मुझे मिल गया ओपनिंग बैलेंस लैंड का। समझ में आ गया। एंड डैश डैश मतलब ये है ही नहीं स्टूडेंट्स, इसको फाइंड करने की कोशिश मत करो, वो निल है, उसका मतलब ये है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। ना लुक के स्टूडेंट्स, डिडक्शन, ये डैश है, ये भी डैश है, मतलब ये दोनों निल है। तो ये पूरा 50,000 कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली बिल्डिंग के सामने, क्योंकि टोटल 50 होना चाहिए। इफ दिस इज 0, डैश मतलब 0, इफ दिस इज 0 सो दिस शुड बी 50, तभी तो 0 + 50 + 0 विल बी 50,000। तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स नहीं है, प्योर सिंपल मैथ्स है, प्लस माइनस ऐसा कुछ करना है आपको, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है। अब स्टूडेंट्स मैंने कैसे बताया था, ओपनिंग प्लस दिस माइनस दिस वी गेट क्लोजिंग, 50,000 + 0 - 0, तो ये भी मिल जाएगा हमको 50,000। अच्छा, ओपनिंग प्लस माइनस 1,50,000 + 0 - 50, सो 1 लाख -50 करेंगे, 1,50,000 - 50, तो वी गेट 1 लाख, एकदम सिंपल। 7 लाख + 0 - 0, तो 7 लाख ही रहेगा। और स्टूडेंट देखो टोटल मैच भी हो गया, 7 लाख, 8 लाख, 8,50,000, दिस टोटल वाज गिवन टू अस। तो ये हमारे फर्स्ट 4 कॉलम्स फिल हो गए। ये तो दिया ही नहीं था उन्होंने, डैश डैश दिया था, मतलब वो जाने दो, वो निल है। अब आ जाओ सेम वे डेप्रिसिएशन, सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट देखो लैंड पे वैसे भी डेप्रिसिएशन होता नहीं है, हमने अकाउंट्स में सीखा है। इसके लिए देखो उसका डेप्रिसिएशन कॉलम में सब जगह निल कहा था उन्होंने, लैंड पे देयर इज नेवर एनी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये तो हमको सब दिया था, वो ही लिखा हुआ है। अभी ये मिसिंग है, बड़ा आसान स्टूडेंट्स, टोटल पता है 3,65,000, 365, ये तो निल है, सो 15,000 माइनस कर दो, तो ये बैलेंसिंग फिगर जो आपका क्या हो जाएगा, 3,50,000। आगे समझ में, 365 - 15 - 0, ये 0 है ना, तो 350 आएगा। हो गया, कितना आसान है एकदम। वो दिखने में इतना बड़ा लग रहा है शेड्यूल स्टूडेंट, बट इट्स वेरी इजी। अच्छा, और ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे भी, नो नीड टू वरी। जब ट्रेड एक और ऐसा क्वेश्चन मैं करूंगा, एंड देन व्हेन वी स्टार्ट विद P&L बैलेंस शीट, वहां पे तो ये बनाना कंपलसरी होगा स्टूडेंट्स। तब उसमें सारे कॉलम्स हम लोग फाइंड करेंगे कैसे आंसर्स आते हैं। और एग्जाम में समटाइम्स व्हाट हैपेंस, सिर्फ 7 या 8 मार्क्स के लिए दे आस्क ओनली दिस शेड्यूल, कुछ एडजस्टमेंट्स देते हैं वो, परचेज सेल ऐसा हुआ, एंड यू हैव टू फिल एंड यू हैव टू ड्रॉ द स्टेटमेंट। ओके, तो ये अच्छे से सीखना है हमको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देन अभी हमको नेट ब्लॉक, ये सब मिसिंग है। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखना, सब जगह क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है स्टूडेंट्स। नेट ब्लॉक अगर ओपनिंग फाइंड करना है तो ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन। देखो ओपनिंग कॉस्ट लैंड का 50,000, ओपनिंग डेप्रिसिएशन 0, सो ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन, 50,000 - 0, 50,000। सेम वे बिल्डिंग, ओपनिंग कॉस्ट 1,50,000, ओपनिंग डेप्रिसिएशन 18,750, so 1,31,250. 7 lakh opening cost,
ओपनिंग डेप्रिसिएशन 2,80,000, so 4,20,000 plus 131,250 plus 50,000, so ये हो जाएगा 6,01,250. मैंने टोटल कर लिया स्टूडेंट्स. ओके अच्छा, ये लास्ट कॉलम का टोटल हमको दिया था क्या स्टूडेंट्स? एक मिनट ना, शायद नहीं दिया था ना. हाँ, लास्ट कॉलम का टोटल मिसिंग था. नो प्रॉब्लम. चलो टोटल नहीं है तो कोई बात नहीं. बट स्टूडेंट्स क्लोजिंग का मैंने ऑलरेडी लिखा दिया है. क्लोजिंग फिर से फाइंड करने का, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन. प्लांट मशीनरी क्लोजिंग कॉस्ट 7 लाख, क्लोजिंग डेप्रिसिएशन ये रहा स्टूडेंट्स 3,50,000 माइनस 3,50,000, so 7 लाख माइनस 3,50,000 विल बी 3,50,000. अब ये तीनों का टोटल कर लो, प्लस 85 एंड प्लस 50, सो इट कम्स टू 4,85,000. ये जो आंसर है ना, फाइनल आंसर स्टूडेंट, दिस गोज टू बैलेंस शीट. ये आपके बैलेंस शीट में जाता है. यहाँ पे और भी कॉलम्स जाते हैं, बट वो ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. क्लोजिंग बैलेंस, दिस क्लोजिंग बैलेंस गोज टू बैलेंस शीट, तो वो हम बाद में लिखेंगे जब हम पूरा क्लोज करेंगे. स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया? बड़ा आसान था, एकदम सिंपल था स्टूडेंट्स. एक मुझे खाली उसी का डाउट रह जाता है स्टूडेंट्स कि वो कस्टमर्स का डिपॉजिट कहाँ लिखने का, थोड़ा सा मुझे डाउट है. अदर करंट एसेट में लिखूं कि कहाँ लिखूं? नॉन करंट एसेट तो नहीं हो सकता, अदर करंट एसेट तो पॉसिबल है. चलो स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मुझे भी, टू बी फेयर, मुझे भी कंफ्यूजन है. आएगा एसेट में, बट विच एसेट, वो इंपॉर्टेंट है ना. अगर कुछ चेंज रहा तो आई विल अपडेट दैट, नो नीड टू वरी स्टूडेंट्स. तो वो था ना कस्टमर्स, कहाँ गया वो? डेपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स वाज हाउ मच स्टूडेंट्स? सॉरी, ये तो डेबिट में था ना. सॉरी, इट्स अ लाइबिलिटी, मैंने गलती से एसेट बोली. इट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड, इट्स अ लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी. सो मैं इसको कहाँ लिखूँ? अदर करंट लाइबिलिटी में ही लिखता हूँ स्टूडेंट्स. डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स आई एम रिकॉर्डिंग अंडर अदर करंट. मैं जब से उसको एसेट सोच रहा हूँ, कितना बड़ा गलती कर रहा था. अच्छा, वो रिकॉर्ड नहीं किया अभी तक. इट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड. डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स 35,000 इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड. सो क्रेडिट साइड मतलब लाइबिलिटी होता है स्टूडेंट्स. चलो देख लिया, अदर करंट लाइबिलिटी. डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, अदर करंट लाइबिलिटी. सो वी हैव पोस्टेड, सारे आइटम्स पोस्ट कर लिए, एडजस्टमेंट भी सारे हो गए स्टूडेंट्स. खाली वो फिक्स एसेट शेड्यूल इंपॉर्टेंट था, बाकी तो ये सब हमने बहुत दफा कर लिया स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अभी क्लोज करना स्टार्ट करते हैं. टोटल करना है स्टूडेंट्स. देखो पेंसिल से हो सकता है विजिबिलिटी का थोड़ा सा इशू है, बट मैं ओरली भी टोटल्स बोलते जाता हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है, पेंसिल से रिकॉर्ड करने का आपने देखा होगा रीजन क्या है कि स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक हुआ टोटल में तो आई कैन रब इट. पेन से एक बार लिख दिया, उसको कैंसिल करूँ ना स्टूडेंट्स, अच्छा नहीं लगता, वो प्रेजेंटेशन पूरा खराब होता है, बाद में आपको समझ में भी नहीं आएगा. वो 9,90,000 प्लस 4 लाख प्लस 6,000. सो टोटल शेयर कैपिटल इज 13,96,000. 1396,000. ये तो टोटल सेम रहेगा 409,000, बट ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ध्यान रखना. नेक्स्ट इज 3,15,000 प्लस 2 लाख, तो इट विल बी 5,15,000. 515. अब आ जाओ अदर करंट लाइबिलिटी 31,500, 24, 17,500, 35,000, 1,08,000. टोटल 108,000. नेक्स्ट 14,000 प्लस 7,500, 21,500. ठीक है. स्टॉक इन ट्रेड, देयर इज नो अदर आइटम ओवर हियर, तो सेम टोटल आएगा नीचे 3,84,500. ओके. ट्रेड रिसीवेबल स्टूडेंट्स ये 345 ही रहेगा, और कोई आइटम था ही नहीं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 385 एंड 165. 550. This will remain same 9,000. Contingent liability doesn't goes to balance sheet. ठीक है. फिक्स एसेट मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, ये है ना 4,85,000. मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूं यहाँ पे. गोज टू बैलेंस शीट. ठीक है, ये टोटल हमेशा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा. तो बैलेंस शीट में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट के सामने 4 लाख कितना आया था वो टोटल 485,000. ओके स्टूडेंट्स, 4,85,000. ओके,
नाउ टोटल्स तो हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी. बाकी 13,96,000 13,96,000. फिर ये नेगेटिव है 409 स्टूडेंट्स, 409,000. नेक्स्ट 515 है. नंबर 3 इज 5,15,000 डैश, देयर इज नथिंग एल्स. क्रेडिटर्स मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख लिया था. नंबर 4 वॉज 1,08,000 108. देयर इज नो शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. फिक्स एसेट हो गया. लॉन्ग टर्म नहीं था, ये था अदर नॉन करंट एसेट. ये अदर नॉन करंट एसेट 21,500 21,500. नंबर 7 3,84,500. Number 8 345,000. Number 9 5,50,550. And last number 10 9,000. Actually ये number 10 के सामने है. अदर करंट एसेट नहीं है डैश. ओके, सो 1396 minus 409, it comes to 9,87,000 987. This will remain same. 515 185 plus 108 2,93,000 plus 515 987. Total will be 17,95,000. 485 plus 21,500. Fixed asset 485 plus 21,500. 5,06,500. 384,500 plus 345,000 plus 550 and 9,000. It comes to 12,88,500 plus 5,06,500. 17,95,000. Balance sheet alhamdulillah tally हो गई. Okay, this was the balance sheet. Simple सा क्वेश्चन था. Only that fixed asset schedule was important, students. ठीक है. So this was